Hi students, today we discuss on the new topic Rutherford model of atom or we can say that alpha scattering experiment. लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि थॉमसन मॉडल के बारे में हमने स्टडी की और जो थॉमसन मॉडल था उसकी कमी एक ये भी थी द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ द थॉमसन मॉडल इज दैट थॉमसन मॉडल should not explain the alpha scattering experiment mean large angle scattered alpha particle are not explained by the Rutherford by the Thomson model, because Thomson model explained that positive charge of the atom distribute uniformly throughout its volume. If positive charge uniformly distribute throughout the volume, it means that alpha particle never be scattered at the large angle. But actually in case of alpha scattering experiment, alpha particle scattered at large angle. It means that this is the basic drawback of the Thomson model. Now we discuss on the Rutherford model. Rutherford model is the experiment that performed by the Geiger and Marsden. These are the two co-associate of the Rutherford, and they performed alpha scattering experiment with the help of the alpha particle that are generated by the radioactive element bismuth having atomic mass number 214. When alpha particle generate have the high energy, then we get alpha beam in a proper line. He used a lead slit that block the alpha particle which dissociate or which differentiate in different direction. He have a small narrow hole in the slit, so alpha beam obtained. Then these alpha particles scattered on the gold foil have the thickness 2.1 10 raised to power minus 7 of meter, and he observed the scattering of alpha particle with the help of zinc sulfide screen. The arrangement of experiment is as shown in diagram. This is the experimental arrangement. Here he used the lead cavity. This is the lead cavity. I have made the color blue of this lead cavity, thick lead cavity, or we can say that lead box. Bismuth 214 put into here because bismuth 214 is radioactive element and it emit continuously the alpha particle of different energy. He used the slit. This is also made up by the lead. Most of the alpha particle are stopped by this slit. Only the narrow beam, alpha beam obtained that pass through this narrow. And here he used the gold foil. This is the gold foil on which alpha particles scattered, and after the scattering these alpha particle, they strike on the zinc sulfide screen. This is the rotable screen made up by the zinc sulfide. When these alpha particle strike to the zinc sulfide, a flash light generated. We can say that scintillation effect produced, a flash light generated with the help of this rotator detector. We rotate this detector over the screen and detect the scattered alpha particle, where number of alpha particle are in large amount, then we obtain with the help of microscope and count the number of alpha particle. This is the basically arrangement. यहाँ आप देखिए कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना लें। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube चैनल पर एक विशेषता ये भी है कि यहाँ आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे कैसे कॉपी में लिख दें, ये नोट्स भी हैं और यहाँ आपको समझा भी रही हैं। तो उसने क्या किया, Rutherford and his two associate Geiger and Marsden performed alpha particle experiment and obtained the internal structure of atom. और इसने क्या जानने की कोशिश की कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी है। तो उसने इस तरीके से अपने अरेंजमेंट किया इस एपरेटस का। इसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स था बिस्मिथ
यूज किया, जिसको एक लेड कैविटी के अंदर इनक्लोज किया, इससे अल्फा पार्टिकल जनरेट हुए और वो एक नैरो बीम से पास होके हमारी गोल्ड फॉयल के ऊपर फॉल हुए। और गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी वो मैंने यहाँ लिख रखी है 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अल्फा पार्टिकल जब स्कैटर्ड हुए तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में हुए, उनको हमने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ रोटेटेबल डिटेक्टर, और जो किस स्क्रीन से बना हुआ, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का मतलब ये हुआ कि स्क्रीन के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे जो एनर्जी पार्टिकल है तो इससे चमक उत्पन्न होगी, एक फ्लैश लाइट जनरेट होगी छोटी सी, जिसको सेंटिलेशन बोलते हैं, और जिसको भी बाद में हम माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर लेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में दो चार बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज ये आती है कि गोल्ड फॉयल को यूज क्यों किया, व्हाई ही यूज द गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल यूज करने का बेसिक पर्पज यही था कि जो अल्फा पार्टिकल हैं हमारे, वो हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं। और हीलियम न्यूक्लियाई क्या है, हैवी मास नंबर की हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास नंबर है 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, हैवी मास नंबर का हो गया। जब इसको आप स्ट्राइक करेंगे लार्ज एनर्जी से तो इनका स्कैटरिंग या इनका डिफ्रैक्शन तभी ऑब्जर्व हो पाएगा अच्छे से जब यहाँ हमारे पास ऐसी फॉयल होनी चाहिए जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा हो। एटॉमिक मास नंबर ज्यादा किसका है, गोल्ड का। गोल्ड का कितना होता है, मैं यहाँ लिख दूं AU79 होता है। तो ये बात इसलिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि थिन फॉयल भी तो हमें ऑब्टेन होनी चाहिए। ऐसे तो 79 से ज्यादा के मटेरियल भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें प्रॉपर्टी मेलिएबल प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए ताकि थिन फॉयल बना सके। थिन फॉयल गोल्ड के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि गोल्ड मेटल है जो it have the malleable property, mean thin sheet or thin foil of the gold can be easily obtained, and second its atomic mass number is high, so when alpha particles strike to the gold foil easily we can detect the scattered particle alpha particle in different direction। तो ये दो प्रॉपर्टी गोल्ड फॉइल की थी, इसलिए इस कारण से गोल्ड फॉइल का हम सेलेक्ट करते हैं। बिस्मिथ अकेला नहीं है, कहीं आपके दिमाग में ये हो कि अकेला बिस्मिथ है, पोलोनियम है, उससे भी अल्फा पार्टिकल, यूरेनियम से भी अल्फा पार्टिकल जनरेट करके हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया वो बिस्मिथ 214 लेके किया था। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही इस पूरे के पूरे प्रोसेस की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसकी ऑब्जर्वेशन में इसने क्या पाया कि जो अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक किए गए तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इस स्ट्रेट पास हो गए। इस रीजन के अंदर लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे के सीधे निकल गए विदाउट स्कैटर्ड हुए। लेकिन इसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए मैक्सिमम पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल हैं बिना स्कैटर्ड के सीधे क्रॉस हो जाते हैं, दे क्रॉस दिस एटॉमिक साइज और एटम्स without any scattering, it mean that most of the part of the atom is empty। तो उसने ये कहा कि अगर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से स्ट्रेट क्रॉस हो जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एटम अंदर से खोखला है, एम्प्टी है। लेकिन साथ ही इसने ये भी पाया कि कुछ सम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट लार्ज एंगल, कि कुछ पार्टिकल थे वो लार्ज एंगल पे भी स्कैटर्ड हुए हैं। और लार्ज एंगल पे स्कैटर्ड हुए हैं इसका मीनिंग ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल तो हैवी पार्टिकल है, और अगर ये लार्ज एंगल पे स्कैटर्ड हुआ तो इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं एक जगह पे इकट्ठा है। तो सेकंड इसने बात की कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम कंसंट्रेट एट ए पर्टिकुलर टिनी स्पेस। थर्ड इसने बात की कि लगभग 8,000 और 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो स्ट्राइक करके रिबाउंड हुआ। रिबाउंड होने का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में गया और वापस इसी डायरेक्शन में वापस लौट के आ गया। इसको बोलते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि आउट ऑफ 10,000 अप्रोक्सीमेट वन अल्फा पार्टिकल रिबाउंड आफ्टर द स्कैटरिंग। मीन स्कैटरिंग के बाद कम से कम एक अल्फा पार्टिकल, लगभग प्रोबेबिलिटी है ये 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा हुआ होगा अल्फा पार्टिकल जो रिबाउंड होके वापस लौट के आ गया। ये इसकी बेसिक ऑब्जर्वेशन थी।
फिर इसने कंक्लूजन में क्या कहा, कंक्लूजन इसके सिंपल से थे कि इसने कहा कि अगर ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुई है तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेट है, और जिस छोटे से स्पेस में ये पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है उसका नाम इसने न्यूक्लियस कहा। और रदरफोर्ड की अचीवमेंट थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। अब हम इसके बारे में, इसके ऑब्जर्वेशन और इसके कंक्लूजन को लिखना चाहेंगे। आप इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना लें। द बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या क्या रही। पहली ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की इस गोल्ड फॉइल के ऊपर तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हुए इसके अंदर से बिना किसी डेविएशन के। अगर वो स्ट्रेट पास होते हैं बिना डेविएशन के तो इसका मतलब हुआ कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी। तो एटम जो हमारा है अंदर से कैसा है, खाली है वो, इससे ये पता लगता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन इसने क्या की, इस डिटेक्टर को इसको मोमेंट कराया जब इस स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल डाले गए तो ज्यादातर सेंटिलेशन यानी जो टिनी फ्लैश कहाँ जनरेट हुई, इस पार्ट पे जनरेट हुई। उसने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे बिना डेविएट हुए सीधे के सीधे निकल के आगे। तो इससे पता लग गया कि एटम है वो एम्प्टी है। सेकंड, ओनली अबाउट 0.14% ओनली इतने एलिमेंट ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जो डेविएट हुए या स्कैटर्ड हुए अल्फा पार्टिकल वो बहुत कम अमाउंट में थे, 0.14% के आसपास थे जो 1 डिग्री से ज्यादा पे। और एक अल्फा पार्टिकल था आउट ऑफ 8000 में से जो 90 डिग्री एंगल से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। ये 3 ऑब्जर्वेशन इसने की बेसिकली। तो 3 ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब इस पे अल्फा पार्टिकल को यहां से बम्बार्डमेंट किया गया तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से पाया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हुए बिना डेविएशन के, बिना स्कैटर्ड के। सेकंड में देखा कि 0.14% ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड हुए, और लगभग 8000 में से एक अल्फा ऐसा पार्टिकल था जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड हुआ। ये 3 ऑब्जर्वेशन इसकी मेनली हुई, और इनसे कंक्लूजन क्या निकले वो हम अभी देखते हैं। कंक्लूजन पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो हम कंक्लूजन की बात करें कि कंक्लूजन क्या निकले, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म तो कर दिया, और परफॉर्म करके ऑब्जर्वेशन भी हमने ले ली, परफॉर्म करके ऑब्जर्वेशन ली, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालें इसका। अगर एग्जाम में पूछता है कि रदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या था, तो रदरफोर्ड के कंक्लूजन क्या क्या थे। फर्स्ट कंक्लूजन था कि एटम जो है हमारा, कोई भी एटम है वो एक टिनी स्पेस कंसिस्ट करता है। सेंटर में उसके कोर टाइप में उसका मेन पार्ट होता है जिसमें उसका ऑलमोस्ट मास और फुल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। ये इसने एक अपना कंक्लूजन दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर इन विच इट्स एंटायर पॉजिटिव चार्ज and almost whole mass concentrated, और this central core is called the nucleus। सबसे मेन अचीवमेंट जो इस मॉडल की है वो यही है कि इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की, इसने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्डमेंट किए थे तो वो क्या था, जो लार्ज एंगल पे स्कैटर्ड हुए। लार्ज एंगल पे स्कैटर्ड तब होंगे जब उनका सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे हो। अगर सारा पॉजिटिव चार्ज अगर रिडिस्ट्रीब्यूट होता थ्रू आउट द वॉल्यूम तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं होती। और लार्ज एंगल स्कैटरिंग होने का मतलब यही हुआ कि उस एटम का पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट के ऊपर एक जगह पे कंसंट्रेट है, और वो जो टिनी स्पेस है उसको हमने नाम दिया, इसने रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। तो एटम जो है स्मॉल और मासिव सेंट्रल कोर रखता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें उसका सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट मास कंसंट्रेट होता है। सेकंड, इसके साइज की बात की, जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और साइज ऑफ एटम हम ऑलरेडी जानते हैं कि 10⁻10 मीटर होता है। तो एटम के साइज के कंपैरिजन में
न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज का 10 की पावर 5 टाइम होता है। और तीसरी बात जो चलती है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल। और लास्ट इसने कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज लाइक प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड में इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे हमारे सन के अराउंड में प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। और चौथी बात इसने ये कही कि जो वो रिवॉल्व करते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आया, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंट्रैक्शन है उसके कारण जनरेट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, देन centripetal force generate due to the force of interaction between the nucleus and surrounded electron, because nucleus is positively charged and surrounding electron have the negative charge। ये चार बेसिकली कंक्लूजन इसके थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहता हूं वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना सके आप लोग। और मैं लास्ट में इसकी ड्रॉबैक के बारे में बात करता हूं कि इसकी कमियां क्या रही। The basic drawback of Rutherford model atom is this। रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ एक परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट को, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूजन निकाले, और सबसे अच्छी बात इसकी हमने पढ़ी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इसकी ड्रॉबैक रही, और बेसिकली दो ड्रॉबैक थी। एक तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में फेल रहा, और दूसरी चीज ये स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो स्पेक्ट्रम की फेलियर आपने देखा हो थॉमसन मॉडल में भी थी, इसमें भी वही रही। तो स्टेबिलिटी कैसे, एटम की स्टेबिलिटी को फेल कैसे रहा ये समझाने में, देखिए इसने क्या कहा, इसका कंक्लूजन में देखो। रदरफोर्ड के कंक्लूजन में था कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस उस टिनी कोर के अराउंड में रिवॉल्व करती हैं। हम सब जानते हैं कि रिवॉल्विंग यानी कोई सर्कुलर मोशन होता है वो एसरलेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, एसरलेटेड मोशन होता है, यानी उसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है लेकिन लीनियर वेलोसिटी की वेरिएशन की वजह से एसरलेटेड मोशन में काउंट किया जाता है उसको। और एसरलेटेड मोशन पे कौन घूम रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं। और जब हमने एक थ्योरी पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम थ्योरी बोलते हैं जिसको, ईएम थ्योरी क्या कहती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो मोशन में हो, और मोशन भी कैसा, एसरलेटेड मोशन। एसरलेटेड मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन होता हो। एसरलेटेड मोशन हमेशा एनर्जी इमिट करता है ईएम वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे। और यहाँ देखिए एटम के चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या, चार्ज पार्टिकल। और मोशन कौन सा, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एसरलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन जब एसरलेटेड पथ पे मूवमेंट करेगा, पाथ पे मूवमेंट करता है, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है तो ये भी ईएम वेव छोड़ेगा। और जो ईएम वेव इमिट करेगा, ईएम वेव क्या है, एनर्जी। जब रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को इमिट कर दे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका पाथ है वो छोटा हो जाएगा, यानी जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की एनर्जी है। जैसे ही इसने एनर्जी कम की, इसका पाथ क्या हो गया, छोटा। और पाथ और छोटा होते होते स्पाइरल फॉर्म में बन जाएगा। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा इसके चारों ओर, ऐसे घूमता घूमता फाइनली कहाँ गिर जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस में फॉल कर गया तो इसका मतलब स्टेबिलिटी तो बची नहीं इसकी। ये इसको फेल रहा समझाने में कि क्यों होता है ऐसा। यानी फर्स्ट थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी, accelerated charge particle radiate EM wave. So revolving electron are also in continuous accelerated motion, so they lose energy in the form of EM wave, and radius of the orbit became shorter and shorter gradually, and finally they fall into the nucleus. In this way atom are not stable, but actually atom are stable। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम स्टेबल है नहीं, लेकिन वास्तव में तो एटम की स्टेबिलिटी होती है। तो ये फेल रहा है इसको। और सेकंड, स्पेक्ट्रम को भी फेल रहा है ये समझाने में
कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, जब हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था डिस्क्रीट नेचर का, यानी उसके एनर्जी लेवल एक डेफिनेट एनर्जी को ऑक्यूपाई करते हैं। और यहाँ क्या हुआ, ये कंटिन्यू रिवॉल्व करता गया तो एनर्जी क्या करेगा, छोड़ देगा। तो ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी इमिट करता है, और कॉन्टिन्यूस एनर्जी इमिट करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी एक कॉन्टिन्यूस रेंज में होता है। और कॉन्टिन्यूस रेंज में होगा तो इसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली डिस्क्रीट नेचर का होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल its emission spectrum is continuous, but atom like hydrogen show the line spectrum in discrete form. This is the controversy between the Rutherford model and actual experimental observation. तो इसकी ऑब्जर्वेशन में और जो एक्चुअली जो ऑब्जर्व्ड है स्पेक्ट्रा, उसमें ये कॉन्ट्रोवर्सी थी, ये ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, मैंने नोट्स की फॉर्म में ये आपको समझाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक क्या होता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिव सेंट्रल कोर, ये इसकी सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन का मतलब है लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यहां से हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, ये हमारा अल्फा पार्टिकल, यहां से गया अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो अल्फा पार्टिकल की सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर का मतलब दो पैरेलल लाइन होती है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं। कई जगह पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ लिखा मिलेगा, कई जगह पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा मिलेगा, दोनों का एक ही मीनिंग है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब है, जब इसकी सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर, जब इसमें स्कैटरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहां से देखोगे ना, ये लाइन ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये स्कैटर्ड हो जाता अल्फा पार्टिकल किसी एंगल से। ये जो थीटा एंगल है इसको स्कैटर्ड एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ स्कैटर्ड। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। इस सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस when the alpha particle is far away from the nucleus of atom। far away from the nucleus of atom का मीनिंग यही है कि वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर वो ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई यहाँ जो ई है ये काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू हाफ ऑफ mv² होती है, ये काइनेटिक एनर्जी है। और जो ये एंगल है थीटा, थीटा यहाँ स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, ये स्कैटरिंग एंगल है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे आप cos θ/2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो समझ लीजिए आप यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इफ पहला केस है इफ b इज मोर, अगर b इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ cot θ/2 इज आल्सो मोर वैल्यू, ये भी इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस। तो थीटा की वैल्यू कम होगी तो इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, और थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा हो जाएगा, रेसिप्रोकल इफेक्ट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि ये जो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो उनका इंपैक्ट पैरामीटर कितना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बना लें। यहाँ मैंने रदरफोर्ड मॉडल को कंप्लीट कर दिया है, और आपने इस वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।